भारद्वाजवतौ पगायन सुधी शाण्डिल्यमौञ्ज्यायनान् पंच ऋषीन् सह कौशिकान् कुलगुरून् वंदे महायोगिनः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः पश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओं तत्सत्। श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे प्रथम्यां शुभतिथौ स्थिरवासरयुक्तायां कृत्तिका नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायां अस्यां प्रथम्यां शुभतिथौ श्री भगवतः श्री वासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्री वासुदेव प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्री भूमनेला पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवास स्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः प्रीत्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं च वैवाहिक महोत्सव कर्मणि కళ్యాణోత్సవానికి సమర్పించుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు నక్షత్రము మరియు పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్రమును మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. கல்யாணோத்சவத்துக்கு சமர்ப்பித்த உபயகாரர்கள் உங்கள் கோத்திரம் பேரு நட்சத்திரம் உங்கள் ஆத்து மாமியுடைய நட்சத்திரம் குழந்தைகளுடைய நட்சத்திரத்தை மனசில் நினைத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूल सिद्ध्यर्थं अरोग दृढगात्र वज्र शरीराभिवृद्ध्यर्थं श्री पद्मावती नायिका समेत श्रीनिवास स्वामी दिव्यानुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्रीपांचरात्र भगवच्छास्त्रोक्त विधानेन कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये। श्री पद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती मंगलवाद्यम। पद्मावत्यै नमो नमः। पद्मावती पद्मवर्णा पद्म अस्तापि पद्मनि पद्मासना पद्मकर्णा पद्मास्य பத்மலோச்சனா என்று இதோ திருச்சானூரிலிருந்து பத்மாவதி தாயாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் இந்த திரையின் வழியே தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, அந்த தாயாரை சேவித்துக் கொண்டு இன்றைய வர்ணனையை தொடங்குகிறேன். பாஞ்சராத்திர ஆகம விதிமுறைப்படி முதலில் அர்ச்சகர் சுவாமி சங்கல்ப மந்திரத்தை கூறினார். பின்பு கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, புண்ணியாகவாச்சன கைங்கரியம் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நடைபெற உள்ளது. அதை நாம் தரிசிக்க உள்ளோம். கபிலரின் ஆசிரமத்தில் தவமிருந்த திருமகளுக்கு தம்மை குறித்து திருமால் பத்ம சரோவரத்தில் தவமிருப்பது தெரிய வந்ததாம். அதே சமயம் ஆனந்த நிலையத்தில் பத்மாவதி பகவானின் மனோபீஷ்டம் நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி தியானத்தில் இருப்பதும் தெரிய வந்ததாம்.
திருமகளின் இதய கமலத்தில் கலக்கம் குடி புகுந்தது. திருமகளின் மனோநிலையை புரிந்து கொண்ட கபில முனிவர், ஜெகன்மாதா, சகல கல்யாண குணங்களோடு விளங்கும் தேவியின் திருமுகம் குவிந்துவிட்ட தாமரை போல் வாட்டமுற்று இருக்க காரணம் யாதோ என்று வினவினாராம். அருந்தவத்தீர், எம்பெருமானுக்காக நான் இங்கு தவம் இருக்கிறேன். எம்பெருமானோ எனக்காக பத்ம சரோவரத்தில் தவம் இருக்கிறார். நாங்கள் இருவரும் இணைய வேண்டும் என்பதற்காக பத்மாவதி ஆனந்த நிலையத்தில் தியானித்திருக்கிறாளாம். இதற்கு எப்படிதான் முடிவு ஏற்பட போகிறது என்று எண்ணி பார்த்தேன். மனம் சஞ்சலம் அடைந்துவிட்டது. இதில் சஞ்சலத்திற்கோ சிந்தனைக்கோ இடம் ஏது? மகாலட்சுமி தாமரை மலரில் பிராட்டியர் எழுந்தருளி நாராயணனின் திருமார்பில் வாசம் செய்ய வேண்டியதுதானே. தேவிக்கு அடியேன் ஒரு சிறு விண்ணப்பம் செய்ய பிரார்த்திக்கின்றேன் என்றாராம். மகரிஷியே, உங்கள் பாத துக்கள்தானே என் தேவன் போற்றி பணிவது. அதனால் என்னிடம் தாங்கள் தயங்காமல் எதையும் உரைக்கலாம். அதனையும் நான் நன்குணர்வேன். இல்லாவிட்டால் பெருமானுக்கும் பிராட்டியாருக்கும் ஏன் இப்படி ஒரு பிணக்கு ஏற்பட போகிறது என்று கூறிய கபிலர் மேலும் தேவியையும் தேவனையும் ஆராதித்தாராம். சொல்லுக்கு பொருள் பெருமாள். அந்த பொருளை புலப்படுத்தும் சொல் பிராட்டியார் அல்லவா? நீதியே தேவி. அந்த நீதியின் உபாயமான நயமோ தேவன். தர்மமே ஸ்ரீனிவாசன். அந்த தர்மத்திற்கு சாதகமான சத்கிரியை ஸ்ரீதேவி. படைப்பவன் பெருமான். அந்த படைப்புக்கு சக்தியோ பிராட்டியார். பூமியே தேவி. அந்த பூமியை தரிப்பவன் தேவன். பகவான் சந்தோஷம். அதை உருவாக்கும் சந்துஷ்டி ஸ்ரீதேவி. யக்ஞம் ஜெகநாதன், தட்சிணை ஜெகன் மாதா. ஸ்ரீ விஷ்ணு பகவானே சங்கரன். ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே கௌரி. கேசவனே சூரியன். அவனது பிரபையே கமலை. ஸ்ரீமன் நாராயணனே சந்திரன். அந்த சந்திரனின் காந்தியாகிய நிலவே ஸ்ரீதேவி. ஹரியே வாயு. அந்த வாயுன் செய்கையே திருமகள். சமுத்திரம் கோவிந்தன். அலை முதலான அந்த விக்ருதிகளுக்கு அனைத்தும் ஸ்ரீதேவி. ஸ்ரீதரனே குபேரன். ஸ்ரீதேவியே அந்த குபேரனின் பெருஞ்செல்வம். திருவிளக்கு சர்வேஸ்வரன். அதன் கார்த்தியே லோக நாயகி பத்மாவதி தாயார். ஸ்ரீமன் நாராயணன் கற்பக மரம் என்றால் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி காமவல்லி கொடியாம். பகவான் நதி ஸ்வரூபன். ஸ்ரீதேவி நதி ஸ்வரூப்பை. இப்படி தேவனும் தேவியும் ஒருவர் அடக்கமே என்பதனை உணர்த்தும் தோத்திரங்கள் பல சொன்னார் கபில முனிவர். எவ்வளவு அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் பாருங்கள். கபிலரின் துதி மொழியை கேட்டு பூமகள் அகமலர்ந்தாள். கபிலரின் விண்ணப்பத்தை ஏற்றருளிய ஸ்ரீமகள் பத்ம சரோவரத்திற்கு எழுந்தருள திருவுள்ளம் கொண்டாள். மகரிஷியே, நான் லக்ஷ்மியாக அவரது உள்ளத்திலே வாசம் புரிய போகிறேன். அவருக்கு துயரத்தை கொடுத்த இந்த சரீரம் இந்த இடத்திலிருந்து கொண்டு தவத்தை மேற்கொள்ளும். பெருமானும் பிராட்டியாரும் எத்தனையோ திரு அவதாரங்கள் எடுத்து திருவிளையாடல் புரிந்திருக்கிறார்கள். உங்கள் அவதார மகிமைகளையும் கீர்த்தியின் திறனையும் சொல்லி கொண்டாட ஆதி சேஷனாலும் இயலாது. துவாபர யுகத்தில் ஸ்ரீமன் நாராயணன் திருமார்பிலேயே வாசம் புரிந்த லோக நாயகி இதோ கலியுகத்தில் ஸ்ரீனிவாசனை பிரிந்திருப்பது லோக க்ஷேமத்திற்கு ஏற்றதல்லவா? அதனால் தேவி இந்த அடியேனின் வேண்டுகொள்ளை ஏற்றருளி மனோபாவத்தை மாற்றிக்கொண்டு கமலத்தில் எழுந்தருளி ஸ்ரீமன் நாராயணனின் திருமார்பில் வாசம் புரிதல் வேண்டும் என்கிறாராம். கபிலரின் அமுத மொழிகளால் மேலும் ஆனந்தம் கொண்டு தமது பூர்வ சரீரத்தை அங்கேயே தியானித்து இருக்குமாறு செய்துவிட்டு பத்ம சரோவரத்திற்கு புறப்பட்டாள் ஸ்ரீதேவி தாயார். பத்ம சரோவரத்தில் ஸ்ரீமன் நாராயணனின் திருமுன் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள அலர் மீது எழுந்து அருளினார் ஸ்ரீதேவி தாயார். தியானத்தில் இருந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் தேவியின் திவ்ய தேஜோ ரூபத்தை கண்டார். தேவியும் நாராயணனை நோக்கினாள். இந்த பொன்னான சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு மன்மதன் மலர்கண்ணை தொடுத்து இருவரது உள்ளத்திலும் இன்பத்தை படரவிட்டான். தேவர்கள் தன்மலர் சொரிந்தனர். தேன்மலர் மனதை தாங்கிய வண்ணம் தென்றல் வீசியது. இத்தகைய கண்கொள்ளா காட்சியை கண்டு களிக்க காத்திருந்த நான்முகனும் சங்கரனும் மற்றும் இந்திராதி தேவர்களும் பிருகு முதலிய முனிவர்களும் ஸ்வர்ணமுகி தீரத்திற்கு வந்தாராம். அலர்மேல் மங்கையை
ஆராதித்து வணங்கினாராம். எப்படி என்றால், நமஸ்தேஸ்து மகாமாயே ஸ்ரீபீட்டே சுரபூஜிதே சங்க சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே. அம்மா தாயே ஜெகன்மாதா, லோகமாதா, லோகரக்ஷினி, என்னை எப்பொழுதும் நீ காத்தருள வேண்டும் என்று தியானித்தாராம். நாமும் கூட அந்த தாயாரை நம்மை காக்குமாறு, நம்மை ரட்சிக்குமாறு அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகியை நாமும் சேவிப்போம். இதோ பத்மாவதி தாயார் தங்க சிம்மாசனத்திலே வீற்றிருக்கிறாள், அந்த ஸ்ரீனிவாசனை கரம் பிடிப்பதற்காக. தேவிக்கு பிருகு முனிவரை பார்த்ததும் கோபம் பொங்கி வந்தது. அதனால் மலரை விட்டு இறங்கி திருமாலின் திருமார்பில் வாசம் புரிய தயக்கமுற்றாள். அதனை உணர்ந்த சிவபெருமான் அருகே நின்று கொண்டிருந்த பிருகு முனிவரை பார்த்து, மகரிஷியே, பெருமானும் பிராட்டியாரும் பிரிந்திருக்க காரணம் நீங்கள்தான் என்பதை மறந்திருக்க மாட்டீர்கள் என்றாராம். दशाङ्गुलं पुरुषय सर्वयद्बोधयच्च भाव्यम् मुदामृतत्वस्य नो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातो ज्यायाग्नश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदेत् पुरुषः पादोऽस्येहावत्पुनः
ततो विष्मङ्यक्रामद्भाषनाम शने अभेम् ततो विराल जायत विराजो अधिपुरुषः स जात अत्यारिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं पृषदोज्यम् पशोऽग्निस्ताग्निश्चक्रे वायुव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतर्चः सामानि जज्ञिरे छन्दाग्नेऽसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके च भयादतः गावो जज्ञिरे तस्माज्जाता जावयाः तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्त साध्यार्षयश्च ये यत्पुरुषं व्यदधुक्कतिधाव्यकल्पयन् मोक्षं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरोपादा उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासेत् बाहुराजन्यः कृतः होरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याग् शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत नाभ्या आसेदन्तरिक्षज्ञ शीर्ष्णाद्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देव यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म युध्मशरद्धवेः सप्तास्याः सम्परिधयस्त्रसप्त समेध कृताः देवायद्यज्ञान्तं वाना अबाध्वन् पुरुषं पशम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् नागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्ते देवाः अभ्यः सम्भृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समावर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजनमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमस परस्ताद् तमेव वेदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परे पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्
तस्थुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा संपशे श्रेश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् ईष्णन्येषाणामुम्म ईशान सर्वलोकम्म ईशाना तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषा दधि नैनमोध्वन्मचर्यञ्चन्न मध्ये परिजग्रभत् अतस्य प्रतिभा अस्ति यस्य नाम महद्यशः हिरण्यगर्भ इत्येषः एषोह देवः प्रजुषो नु सर्वाः पूर्वोः जातः स उगर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः यस्मान्न जात इत्येषः तेनस्तत्पश्यन्नेदङ्गुहा सत्यत्र विश्वं भवत्येक नीलम् तस्मिन्निदग् सञ्च विचैति सर्वज्ञ स ओतः प्रोतश्च विभोः प्रजासो प्रतद्वोचेदमृतन्व विद्वान् गन्धर्वो धाम बिभृतङ्गुहासत् त्रीणि पदानि निहेता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिता सत् स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरायन्ता परेत्य भूतानि परेत्य लोकान् परेत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभिसंविवेश परिद्या वा पृथिवे सद्ययित्वा परिलोकान् परिदिशः परिष्मान् ऋतस्य दन्तं विदातं विचृत्य तदा पश्यत्तदा भवत्तदासीत् सदा सस्पतिमद्भूतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् समिं मेधामयासि षड्स्वाहा यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधावेनं कुरु स्वाहा इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम् मयि देवादधातु श्रियमुत्तमां तस्यै ते स्वाहा
अपेतोयन्तु पणयोऽसुं नादेव पीयवाः अस्य लोकस्वतावदः यभिरहोभिरक्तोभिर्व्यक्तं यमो ददात्ववसानमस्मै सविता ते शरेरेभ्यः पृथिव्या लोकमिच्छतो तस्मै युज्यन्तामुश्रियाः वायुः पूर्णातु सविता पूर्णात्वग्नेर्भ्राजसा सूर्यस्य वर्चसा विमुच्यन्तामुश्रियाः अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसतिष्कृताम् गोभाज इत्किलासथ यत्सनवधपोरोषम् सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ आवपत् तस्मै पृथिवीशम्भवाम् प्रजापातौ त्वा देवतायामुपोदके लोके निदधाम्यसौ परं मृत्यो अनुपरे हि पन्थान्यस्ते अन्य इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमिमानः प्रजाज्ञ हेरिषो मातवीरान् शम्बातशग्हिते घृणिष्यन्ते भवन्विष्टागाः सन्धे भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मात्वाभिशोषुचन् कल्पन्तां ते दिशस्तुभ्यमापशिवतमस्तुभ्यं भवन्तु सिन्धवः अन्तरिक्षज्ञ शिवन्तोभ्यं कल्पन्तां ते दिशः सर्वाः अस्मन्वतीरीयते सज्ञराभाध्वमुत्तिष्ठत प्रचारत सखायः अत्राजहीमो शिवाये असञ्शिवान् वयमुत्तरे माभिवाजान् अपाघमपकिल्बिषमपकृत्यामपोर्रपाः अपामार्गत्वमस्मदपदुष्वप्न्यग्नसुवाम् सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तो योऽस्मान् वेष्टियं च वयं विष्मः अनड्वाहमन्वारभामहे स्वस्तये स न इन्द्र इव देवेभ्यो वह्निः सन्तारणो भवा उद्भयन्तमासस्परेष्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रासोर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् अग्न आयो अग्निशिपवसा सुवर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुनाम् आयुष्मानग्ने हविषा वृधानो घृतप्रतीको घृतयो निरधि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमान् स्वाहा इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषान्नुगदपारो अर्धमेतम् शतं जीवन्तु शरदः पुरोचेरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन परिमे गामने शतपर्यग्निमहृषता देवेष्वः क्रतश्रवः क इमा आदधर्षति
क्रव्यादामग्निं ब्रहेणोमि दूरय्यमराज्यं गच्छतुरिप्रवाहः इहैवायमितारो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वाहतो प्रजानन् पहावपाञ्जातवेदः पितृभ्यो यत्रेणां पेद्धनिहेतां पराके मेधसः कुल्या उपतान् स्रवन्तो सत्या येषामाशिषः सन्तो कामा स्वाहा स्योना पृथिविनो भवान् रक्षरनिवेशने यच्छः नः शर्मा सा प्रथाः अपनशोषु च दघम् अस्मात्त्वमधिजातोऽसि त्वदयञ्जायतां पुनः असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा अपनशोषु च दघम् चम्बचं प्रपद्ये मनो यजः प्रपद्ये सोमप्राणं प्रपद्ये चक्षुश्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहजो मय प्राणापानौ यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाते तृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु षण्णो भवतु भुवनस्य यस्पतिः कयानश्चित्र आभोवधूति सदा वृधः सखा कयाशचिष्ठया वृता कस्त्वा सत्यो मदानां मग्नेशिष्ठो मत्सदन्धसः दृष्ट्वा चेद्धारुजे वसु अभेषो नः सखे नाम विताजऋतॄणां शतं भावास्योतिभिः कया त्वन्न ओत्याभिप्रमन्दसे वृषन् कया स्तोत्रभ्य आभर इन्द्रो विश्वस्य राजते षण्णो अस्त्वद्विपदे षञ्चतुष्पदे षण्णो मित्रः शम्बरोढः षण्णो भवत्वर्यमा षण्ण इन्द्रो बृहस्पतिः षण्णो विष्णोरुरुक्रमा षण्णो वातः पवताग्निः षण्णस्तपतु सूर्यः षण्णः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिहर्षतो अहानिशं भवन्तु नः शग्रात्रिः प्रति धीयताम् षण्ण इन्द्राग्नि भवतामवोभिः षण्ण इन्द्र वरुणा रातः व्या षण्ण इन्द्र पूषणा वाजसातौषमिन्द्र सोमा सुविताय संयोः षण्णो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रावन्तु नः स्योडा पृथिविनो भवान् ऋक्षरनिवेशने यच्छः नः शर्मा सा प्रथाः आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जेदधातना महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनाः उषतिरिव मातराः
तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वद्धा आपो जनयथाचनः यौ शान्तिरन्तरिक्षशान्त्यः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः दृग्गृहमामित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समेक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समेक्षे मित्रस्य चक्षुषा समेक्षामहे दृग्गृहमा जोक्ते सन्दृशे व्यासञ्जोक्ते सन्दृशे व्यासम् नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्मच्छुषे अन्याग्नस्ते अस्मत्तापन्दहेतयः पावको अस्मभ्यज्ञ शिवो भव नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते तनयित्नवे नमस्ते भगवन्नस्त्वयतस्वसमेहसे यतो यतस्समेहसे ततो न अभयङ्करो षण्णक्वर प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः स्वमेत्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मेत्रियास्तस्मै सन्तु तोऽस्मान् वेट्टियम् च वयम् विष्मः तच्चक्षुर्देवहेदं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरते अश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतज्ञ शृणुयाम शरदशतम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமஹ என்று இந்த பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் இப்பொழுது நாம் மகா சங்கல்பம் கன்னிகாதானத்தை சேவித்தோம். இதைத் தொடர்ந்து மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அதற்கு அர்க்கியம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து பின்பு அந்த திருமாங்கல்யத்தை அந்த பகவானுடைய திருக்கரத்திலே சமர்ப்பித்த பின்பு அந்த மாங்கல்யங்களை பத்மாவதி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அந்த அருமையான மாங்கல்ய தாரணம் என்கிற சுப நிகழ்ச்சியை இந்த திரையின் வழியே நாம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். லோகமாதா, தாங்கள் குமாரன் அறியாத செய்த பிழையை பொருந்தருள வேண்டும். மீண்டும் ஸ்ரீமன் நாராயணன் திருமார்பில் வாசம் புரிந்து 14 லோகங்களிலும் சுபிக்ஷத்தையும் மங்களத்தையும் தங்குமாறு செய்து அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தாராம். ஜெகன்மாதா சாந்த ஸ்வரூபியானவள் புருகுவை மன்னித்தாள். அலறி நின்றம் எழுந்து அருளினார். நாராயணனை வலம் வந்தாள். நான்மறையால் போற்றினாள், நமஸ்கரித்தாள். திருக்கரத்திலே தாங்கி வந்த பொற்கிண்ணத்தில் இருந்த நறுமணம் கமலும் கலப்ப சந்தனத்தையும் ஸ்ரீனிவாசனின் திருமார்பிலே பூசினாளாம். கற்பக மாலையை அணிவித்தாள். வக்ஷஸ்தலத்தில் எழுந்தருளி உள்ள அந்த மகாலட்சுமி ஷட்குண ஐஸ்வர்ய திருப்பார்கடல் பெருமானான ஸ்ரீமகளை தமது வக்ஷஸ்தலத்திலே இருத்தி கொண்டார். சர்வாத்மானமான ஸ்ரீமன் நாராயணன் பிராட்டியாரின் அன்பிற்கு திருவுள்ளம் உவந்து 4 திருக்கரங்களோடும் திருமேனியோடும் அவதரித்தார். இந்த மாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. रोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याण
மங்கா अग्निज्योतिषं त्वा वायुमचेहं प्राणपतिं स्वर्गायोपदधामि भास्वते अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहा सूर्यज्योतिषं त्वा वायुमचेहं प्राणपतिं स्वर्गायोपदधामि भास्वते सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिस्सूर्यस्वाहा सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या उषाणो अग्निर्वेद स्वाहा
सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या युषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा विचक्रमे त्रयदानि ददे पदं समोढमस्य पागुं सुरे पुंपूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै भोर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै भोर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा
वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ